welcome. You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. In less than 12 hours from now, we'll be in Results Day live. But today's results and today, the day belong to the Aam Aadmi Party. The one in the municipal corporation polls in Delhi, as against the 104 of the BJP, the Aam Aadmi Party got 134 and the Congress managed 9 wards. But the big outcome of the municipal results was that almost immediately the AAP declared that tomorrow it will be Gujarat, and after that it's Mission India for them. The claim was also made because of the reduced footprint of the Congress. From 30 seats in 2017, the Congress crashed down to 9 and also lost almost 10% of its vote share. This, coupled with the projected poor performance of the Congress party in Gujarat, led all major voices in the Aam Aadmi Party to claim, "Hum hai challenger, tomorrow belongs to us." तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। 75 साल बीत गए इस देश को, 75 साल में हम पीछे रह गए। अब टाइम नहीं है, जनता बड़ी बेचैन हो रही है। अब अगर अपने को अपने देश को आगे ले जाना है, पॉजिटिव राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी। I love you too. बीजेपी वाले कह रहे हैं आज का जो पोल एग्जिट आज वाला गलत साबित हो गया, तो कल वाला गलत साबित नहीं हो सकता। जो कल होगा वो भी गलत साबित होगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा चमत्कार आपको देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने 15 साल की भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर ईमानदार, कट्टर ईमानदार केजरीवाल जी के नेतृत्व में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुमत दिया है। अब ये तय हो गया कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक ही विकल्प है, अरविंद केजरीवाल। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक ही विकल्प है, आम आदमी पार्टी। जनता ने एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है, उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। But it is not as if all of this is really borne out by facts. Even in Delhi, remember, the Aam Aadmi Party has plenty of chinks in its armour, from losing all 4 wards that fall in Kailash Gehlot's constituency to losing 2 of 3 wards in Ram Nivas Goyal's seat to winning only 1 of 5 wards in the seat occupied by Amanatullah Khan, that is Okhla. That isn't all. The BJP also points out that while there is jubilation about the Aam Aadmi Party's win, their recent record in state elections cannot be forgotten in a hurry, not to mention that compared to the Delhi Assembly polls, the Aam Aadmi Party's vote percentage itself has seen a decline. So is the celebration and this proclamation of the Aam Aadmi Party's arrival on the national scene a little bit too premature? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us, Jay Mrug, psephologist and political analyst, senior journalist Harshvardhan Tripathi, Sanjeev Kaushik, political analyst, leader of Congress, Lokesh Jindal. My first question is to Nigat Abbas, spokesperson of the BJP. आज पूरे दिन माहौल ऐसा था निगत अब्बास कि सिंहासन खाली करो, आम आदमी पार्टी आती है। So, Padmaja, I'd like to congratulate, first of all, from your panel to everybody who has won, despite of no matter which party and whichever political party or ideology they come from. Firstly, I'd like to tell the viewers, and also I need to reiterate to everyone here, that Aam Aadmi Party, before the elections, before the elections were held, they created a narrative that Delhiites are completely going to dismiss the Bharatiya Janata Party's candidates. Now, wherein they have been proven wrong, because we have given a very, very tough fight. Despite of the fact that we have had governments of 15 years having the anti-incumbency, despite of that, we've been able to pull off 104 seats, which is a big number. And we shouldn't be forgetting that the corruption charges which Satyendra Jain, Manish Sisodia has got, the people of Delhi have accepted that, and people of Delhi has accepted that Satyendra Jain and Manish Sisodia are corrupt. Reason being, which is why we've seen a major
decline, or I'd say that none of the wards have been won in Satyendra Jain's constituencies. Out of 4, there are only 3 wards which have been won by the Manish Sisodia's constituencies. And we should not be forgetting that a prominent face like Amanatullah Khan, he has lost a lot of wards in his constituency. Atishi Marlina, who's again a media personality, has faced a lot of losses in the wards in her constituency. Kalka ji, all 3 seats, all 3 wards were lost. So we should be forgetting that, and also not forgetting to mention the so, and not to forget the mention, not to forget that they have also seen a big number of decline in the vote share which they've got as compared to the 2020 elections. Like in 12%, it's a big number. And despite of the fact of anti-incumbency again. Okay, fine. You're saying all of these factors show that moral victory aapki hui hai, but then actually, to be very fair, if you're going to compare vote percentage, you compare your vote percentage from the 2019 Lok Sabha elections to what has happened in 2022, तो आपका तो बहुत ही जबरदस्त डिक्लाइन हुआ है. सारे आपके सांसद है, if I start putting out your MP's report cards, then there's a major decline there as well. But Sanjeev Kaushik, premature celebration. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, कांग्रेचुलेशंस, ग्रेट जॉब, बट ये भी मत भूलिए उत्तराखंड में क्या हुआ, ये भी मत भूलिए गोवा में क्या हुआ. लेकिन जहां जीत रहे हैं उसका जश्न तो मनाने दीजिए. नहीं, जीत का जश्न मनाइए, बट टू से कि बस भाई अभी मोदी वर्सेस केजरीवाल इज अ बिट रिच. नहीं, अभी तक तो लोग यही कहते चले आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी केवल कांग्रेस को हटा रही है, कांग्रेस के वोट बैंक को खत्म कर रही है, लेकिन पहली बार लोगों ने ये एहसास किया है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उसके जगह से वो बाहर कर रही है. पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण. और दूसरी बात कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसके क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र से कितनी सीटें कम हुई, तो उसके आधार पर फिर तो लोकसभा के उन नेताओं के बारे में भी चर्चा कर लेनी चाहिए जिनके क्षेत्र से इतनी सीटें कम हुई. तो ये कोई मायने नहीं रखता है. मायने सिर्फ इतना रखता है कि आम आदमी पार्टी ने लगातार इतने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दुष्प्रचार के बावजूद पिछले 4-5 महीनों से यदि वो जीतती है, और एक ऐसी छोटी पार्टी जो 10 साल से ज्यादा उसकी उम्र नहीं है, उसने यदि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को यदि बीट कर दिया, उसको यदि ढकेल के बाहर वापस रास्ता दे दिया, और दिल्ली की जनता ने. संजीव जी, हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं कि आप जीते हैं, जीत का जश्न मना रहे हैं, बट अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट कि जो आप कह रहे थे कि हम उखाड़ फेंकेंगे, ना उखड़ा है ना कहीं उसको फेंका गया है. बिकॉज फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके खुद के जो पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि लिख के ले लीजिए 30 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी. कौन पार्टी हारी है और कौन पार्टी जीती है? आप बिल्कुल जीते हैं सर, बस इतनी सी बात है, बस यही खत्म कर लेंगे. बस इतनी सी बात है, उखाड़ेंगे ना. आने वाले दिनों में आप देखेंगे जो ये लकीर खींचती हुई दिखाई दे रही है आपको, कल ही आप देखेंगे कि वो क्षेत्र, वो प्रदेश जो देश के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, प्रदेश है, वहां से आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है. सर, वाराणसी में तो आप गए थे कंटेस्ट करने के लिए लोकसभा इलेक्शन में, वहां तो जमानत जब्त हो गई थी. कल ही देखते हैं, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे. आप देखेंगे कि वही प्रदेश उनको नेशनल पार्टी बनाने बिफोर निगत अब्बास रिस्पॉन्स, हर्षवर्धन त्रिपाठी, रियलिस्टिकली बताइए कि इज दिस अ बेबी स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ आम आदमी पार्टी बिकमिंग द मेन चैलेंजर इफ नॉट द किंग? नहीं, निश्चित तौर पर पद्मजा, ये तो हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए. राजनीति में कोई कितनी पुरानी पार्टी है, कितनी नई पार्टी है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है. और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने खुद को आगे बढ़ाया है, विशेष करके दिल्ली की बात अगर मैं करूं, तो दिल्ली में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बहुत मजबूत खड़ी थी. दिल्ली में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बड़े नेता यहीं रहते हैं. नरेंद्र मोदी, अमित शाह यहीं रहते हैं, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका भी यहीं रहते हैं. और अगर कांग्रेस को पूरी तरह से साफ कर दिया, 4-4.5% वोट पे कांग्रेस चली गई थी, अभी कुछ बढ़ गई है इसमें, लेकिन अगर पूरी तरह से साफ कर दिया तो ये बहुत ज्यादा चिंता की बात थी कांग्रेस के लिए. अब अगर भारतीय जनता पार्टी को 15 साल बाद ही सही सत्ता से बाहर करती है स्थानीय निकाय के चुनाव में, तो ये बड़ी सफलता है. लेकिन इसमें 2-3 कैच है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी इस जीत की उम्मीद कर रही थी? 134, 104, इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की क्राइसिस है दिल्ली में. भारतीय जनता पार्टी के कैडर का, वोटर का, सपोर्टर का कोई संकट नहीं है. दूसरी बड़ी बात यह कि जिस दिल्ली में यमुना गंदी दिख रही हो, झाग दिख रहा हो, हवा जहरीली हो, वहां कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर आपने माहौल तो बना दिया. घटाएंगे कैसे साल भर के भीतर, क्योंकि आपके विधायकों ने कुछ काम नहीं किया. तो क्या ब्लेम गेम वाली राजनीति चलेगी? अभी भी आप वही करेंगे जिसके लिए अरविंद केजरीवाल की राजनीति जानी जाती है. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या हिमाचल और गुजरात में कुछ इनको मिलने जा रहा है? तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ज्यादा उम्मीद से ये लोग हो गए हैं. हिमाचल हो या गुजरात हो, वहां मुकाबला सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही दिखता है. आप लोकल के बूते पे कुछ ज्यादा ही वोकल नहीं हो रहे हैं संजीव जी? नहीं, बिल्कुल नहीं.
जो सामने दिख रहा है उसे आप कैसे नहीं देख पा रही हैं, मुझे तो आश्चर्य इस बात से है। मैं सिर्फ सर क्योंकि हमें सामने तो गोवा भी दिख रहा है, उत्तराखंड भी दिख रहा है, आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को यू आर प्रोजेक्टिंग इट, अगेन आई एम सेइंग ग्रेट, बट आप सीरियसली यू आर प्रोजेक्टिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रिजल्ट्स ऑन टू व्हाट इज हैपनिंग गोइंग टू हैपन इन द लोकसभा, बट आप असेंबली की अपनी हार को भूल रहे हैं। पंजाब भारत के इतिहास में 10 साल में कोई एक क्षेत्रीय पार्टी 2 स्टेट के बाद में किसी तीसरे जगह पर इतनी मजबूती के साथ, और वो भी विश्व के सबसे बड़ी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा रही है। पर हर्षवर्धन त्रिपाठी कह रहे हैं दैट इज ओनली बिकॉज उनकी लोकल लीडरशिप कमजोर है। अब वो क्या कमजोर है, वो तो वो समझेंगे ना। सत्ता में थी भारतीय जनता पार्टी, क्या कमजोर है? 15 सालों की सत्ता के बाद 104 सीटों पर है। और यहां एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अरविंद केजरीवाल जी अभी उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर जमानत जब्त हुई। मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का कद बड़ा हो गया, अरविंद केजरीवाल लड़ेंगे, लेकिन अब 2024 में बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वो नहीं कह सकते कि भाई केंद्र नहीं सहयोग कर रहा है। 4 दशक के बाद में जो जगह पाई, ये रफ्तार रहा तो आपको देखने को मिलेगा कि 20 सालों से पहले भारतीय जनता पार्टी को वो पीछे छोड़ती है। संजीव जी, यहाँ पे कंपैरिजन ये किया जा रहा है कि जहां आपकी टक्कर कांग्रेस से होती है क्योंकि वो एज इट इज इतनी हतोत्साहित है, वहां पर आप उनको खत्म करने में थोड़ी बहुत आपको सक्सेस मिलती है, बट क्या आप मोदी को सेंटर पे चैलेंज कर सकते हैं? कांग्रेस से तो टक्कर में है ही नहीं। कौन बार बार ये लगातार सुबह से मैं सुनता चला रहा हूं, कांग्रेस से टक्कर कांग्रेस का छीन रहे हैं। कांग्रेस कहां थी? दिल्ली के एमसीडी में कांग्रेस कहां थी? किसकी सरकार थी? किसको हटाया? Let's ask Jemruk, because the argument given, Jay, is that whatever gains have been made by the Aam Aadmi Party is not just at the cost of the Congress, it's actually the BJP they are decimating. Do the facts bear that out? That it's the BJP vote that they are cutting into and damaging? No, one thing is very clear. If you state a mathematical equation, something that we observed across a lot of the demographic voting pattern yesterday, that for every one vote that it was potentially taking from the BJP, it was taking 1.5 votes from the Congress. So certainly Congress is the bigger casualty. The second thing that you actually need to look at is that both the Aam Aadmi Party and the BJP are sort of new tech and new management savvy, using social media, penetrating, virgin or green territory somehow, through a lot of propaganda, even without their own leaders sometimes, right? Certainly that's, another parameter where the Congress does not have a great quotient, as of now, at least demonstrably today. So therefore, again, there Congress becomes the first casualty. So both ways, hard data and qualitatively looking at the strategy of all the competing parties, Congress is the bigger casualty. So Lokesh Jindal, at the end of it, it boils down to that if you really think that the Aam Aadmi Party needs to be contained, you need to make a little more effort. At least try. Padmaja, I'll take a minute or so. See, the reason why MCD was created, merging all the 3 municipal corporations, was because the municipal corporations were in arrears. Now this Aam Aadmi Party's model of distributing freebies, and even now today all the voters, why did they vote for Aam Aadmi Party? Because education is free, electricity is free, water is free, everybody wants freebies. But this is not sustainable. Again, the MCD is going to come. Let me come to that. मैं future की बात कर रहा हूँ. Now, this entire model of Aam Aadmi Party is able to give them a short-run victory, but in the long run, victory to victory है ना. अभी long run कितना होगा? It's like a Ponzi scheme. Now, for example, जो भी आप या तो आप कह रहे हैं कि लोग गधे हैं, अब उन्होंने वोट दे दिया ना, हो गया. लोगों के गधे की बात नहीं कर रहा हूँ. देखिए, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी एक जो Ponzi शेयर आता है, उससे जो genuine shares होते हैं, उनको impact जरूर होता है. अरे सर, अगर आप उनको Ponzi बोलते लेंगे, लोग Ponzi करके आपको फिर लोकसभा के भी बाहर कर देंगे, उनको ले आएंगे. बता देगा. इनका तो ये हाल है कि गधी ने बछड़ा दिया, सौदा हरिद्वार का कर लिया. अरे भाई, बछड़े को बड़ा तो होने दो. अरे सर, हरिद्वार कांग्रेस को जाना पड़ेगा कुछ सालों में, अगर ऐसे ही चलता रहा. आप गिरेबान में झांक नहीं रहे, उनको Ponzi बोल रहे हैं, उनको डिक्टेटर बोल रहे हैं, उनको फासिस्ट बोल रहे हैं, सीटें आपकी जा रही हैं. हर्षवर्धन जी, फ्रीबीज कल्चर कितना ठीक है पॉलिटिक्स के लिए, कितना नहीं ठीक है, इस पर बहस खूब हो रही है. लेकिन ओपीएस कहा ना कि हम देंगे, हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है. वो क्या है? अगर आप ये कह रहे हैं वो नहीं है, तो उसको अरविंद पनगड़िया कहते हैं कि ये सीधे सीधे एक तरह से पाप है, ये राजनीतिक पाप वो कह रहे हैं.
फिर आप उत्तर प्रदेश में आए थे तो क्या क्या कहा था, स्कूटी, तेल, जाने क्या क्या बता दिया था, क्या हुआ आपका। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को बैठ के जरा समझना पड़ेगा, और मैं इससे भी सहमत नहीं कि वो सोशल मीडिया नहीं समझते, न्यू टूल्स नहीं समझते, खूब समझते हैं। असली चीज है लीडरशिप का डिटर्मिनेशन है क्या, उनको पता है क्या किस रास्ते जाना है तो कहां पहुंचेंगे, उनको यही नहीं पता है। कांग्रेस के नेता ये नहीं जानते हैं कि कैसे मंजिल तक पहुंचना है, कौन से रास्ते से, और ये छोड़िए मंजिल ही नहीं पता है, इसीलिए तो कहते हैं हम तपस्या करने निकले हुए। तो अल्टीमेटली जो रुख अभी आप देख रहे हैं, राजनीति कांग्रेस ने आपको सिखाई है, आप हमें राजनीति मत सिखाइए। अरे मैं एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए, मैं राजनीति में नहीं लोकेश जी, जब आऊंगा तो आपसे सीख लूंगा कुछ होगा। मेरी बात, ये जितनी भी भाजपा, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये हमसे राजनीति सीख कर आए। ठीक है, बहुत अच्छा। और दूसरी बात, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह पता है कि जनहित राष्ट्रहित क्या है। हम जनहित और राष्ट्रहित दोनों को साथ में लेकर चलते हैं, केवल और केवल एक इलेक्शन को लेकर नहीं चलते। सर एकदम आप तो बिल्कुल द्रोणाचार्य किस्म के हैं कि आप सबको आपने सिखा दिया, बट आप खुद की आपकी सीटें नहीं बचा पाए। सो अल्टीमेटली हर्षवर्धन जी, इसेंशियली जो रुख है अभी, जो आपको रुख देख करके लग रहा है, आज नहीं तो 5 साल में, 10 साल में, डज इट सीम लाइक अल्टीमेटली द कांग्रेस विल सेल्फ डिस्ट्रक्ट एंड मेक द आम आदमी पार्टी बिकम द मोस्ट चैलेंजर? नहीं, अगर यही तरीका रहने वाला है, इसी तरह से राजनीति को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत तेजी में आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नेशनल, जो इसको कहते हैं ना कि उस पर्सपेक्टिव में हम जो देखते थे कि धुरी बनी हुई है, एपिसेंटर है, वो खत्म कर देगी। निगत अब्बास, इज दैट द बिगेस्ट वरी राइट नाउ? Not that you are not fighting the Aam Aadmi Party, but the fact that the Congress has given up. So their rise is inevitable. Somebody will fill the vacuum. No, I think, no, Padmaja, Congress has completely lost the battle. And it is not just now that it has lost. It has been losing the battle since so many years now. It's the history now. Rahi baat Arvind Kejriwal ji ki party ki. There are 23 municipal parties. Winning one would not make them the nation's party. They need to realize that only one state would not lead them to the national party's, leadership and all of that. They need to calm down and hold their horses. They're very excited winning the Delhi NCD. That's just one. That's just 250 seats. That's it. Another 62 seats. 250, maybe you've got only 134. So it's okay. Just calm down, breathe in. It's not something which you've achieved from the nationwide and you've broken the ice and does what not you've done. All of that. You need to forget that and just, start working. Because now, Bharatiya Janata Party for the first time is in complete opposition in Delhi. Now you're not left with any excuses. Let me remind you. And what Arvind Kejriwal, despite of the fact that he's won today, has started quoting from day one, from speech number 1, that we would need support from the central government. He needs to figure out one thing, that he's in power in MCD and in Delhi government. He needs to just keep the excuses aside now. He needs to really work. Those freebies, those policies which he was saying and kind of, trying to hide behind the curtains that the central government and LG are not letting us do, and we do not have the MCD. Once only we have the Parshad and Vidhan Sabha and Vidhayak only, then we would be able to change the system and the picture of Delhi. Now you have it all. Now it is for you to perform. Now you do not have any excuses. You're not left with any kind of excuses or blame. Sanjeev Kaushik, it might just end up being a crown of thorns. क्योंकि पहले आप छुप जाते थे, आप कहते थे हमारी गलती नहीं है, ये तो भाई एमसीडी की गलती है, अगर ये कूड़े का पहाड़ नहीं आ रहा, ये तो भैया एमसीडी की गलती है। अब आप सॉर्ट आउट कीजिए। नहीं, निश्चित तौर पे अब अगले दिल्ली चुनाव में आप क्या बोलेंगे? कूड़े का पहाड़ की किसकी गलती है? एमसीडी की इस जीत ने आम आदमी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती डाल दी है। आम आदमी पार्टी को यह साबित करना होगा कि उन्होंने जो वादे किए हैं, जो लोगों से बोल के उन्होंने वोट लिए हैं, वो अब उनको पूरे करने होंगे। अब कोई रास्ता नहीं बचा। एक सेकंड, वादे तो आपने पंजाब चुनाव के पहले भी किए थे। आपने कहा था कि पराली जलाने की पूरी समस्या आप सॉल्व कर देंगे ताकि दिल्ली की हवा पलूट नहीं होगी। अब उसके 2 साल बाद नहीं हुआ ना। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, कोई एक स्टेट अपने बदौलत उसका सोल्यूशन नहीं। कूड़े का पहाड़ भी ऐसी समस्या है। नहीं, कूड़े का पहाड़ सरकार दिल्ली में कर देगी। अब आदमी अगर कूड़ा फेंके जा रहा है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे, यदि आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया है तो आप देखेंगी। और यही जनता है, देख ही रहे हैं ना। अब हमें बताया गया कि पराली के लिए 1 साल और का वक्त आप दिल्ली की जनता को मूर्ख समझती है? ये बहुत समझदार है। मैं तो कह रही हूँ, यदि नहीं हटाएंगे तो वो सजा देगी दिल्ली की जनता। मैं तो कह रही हूँ इतनी समझदार है कि शायद उन्होंने अब आपके लिए एक अल्टीमेटम दे दिया कि चलिए, अब आप बहाने बना रहे थे ना, ये लो। निश्चित तौर पर स्वीकार करें ना। नहीं, ये स्वीकार करें ना। ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। अरे भाई, बिना पीएम बने कैसे आप सारी एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करेंगे? कैसे सारे स्टेट से कोऑर्डिनेशन करेंगे? पीएम बनेंगे केजरीवाल जी, तब ना ये सब समस्या सॉल्व कर पाएंगे। गुनाह है क्या? आसानी से थोड़ी गुनाह है क्या? अच्छा, तो मतलब अभी एमसीडी की प्रॉब्लम
अभी भी सॉल्व नहीं होगी। एमसीडी और स्टेट के बाद जब 2029 होगा कैसे कर पाएंगे? अच्छा, तो 2029 तक नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया का पीएम बनना या मुख्यमंत्री बनना, गृह मंत्री बनना, ये सोच लेना गुनाह है क्या? नहीं सर, गुनाह नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि आपके लिए अब ये और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, और जो प्रॉमिसेस आपने जब दिल्ली सरकार बनाई थी उनमें से कई अभी तक पूरी नहीं हुई है, यमुना अभी तक मैली है। जो प्रॉमिसेस आपने पंजाब में सरकार बनाई थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, अभी तक पराली जल रही है, दिल्ली की हवा अभी तक प्रदूषित है। अब आपके पास एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कहा भाई कूड़े का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है, कूड़े का पहाड़ है। अब आप क्या करेंगे कूड़े के पहाड़ का? में दिल्ली की, और कब तक करेंगे कूड़े के पहाड़ का? में दिल्ली की जनता ने एक बहुत बड़ी जीत दी है निश्चित तौर पे। अब हम इधर देख रहे हैं कि काम करने का मौका मिला है, काम करेगी पार्टी। आप देख रही हैं नहीं करे तो नहीं करे तो क्या होगा? अब मेरी भी दादी की मूछें होती तो दादाजी कहते, तो वो तो बात की बातें हैं ना। देखा तब बात। No, my question is that a message giving out clearly from Arvind Kejriwal's mouth and from day one that now we have an excuse of central government? That's exactly what my friend just quoted, कि वहां पे आम आदमी पार्टी को अब प्रधानमंत्री बनना है तभी चीजें होंगी। संजीव जी मुझे आप बताइए, अरविंद केजरीवाल जी पहली बार आए हैं, ये बोलना चाहिए था कि हम अब जो काम नहीं हुए थे एमसीडी में, कूड़े का पहाड़ जैसे पद्मजा राइटली सेड, मैं वो हटाऊंगा और ये करूंगा और पता नहीं क्या क्या कर दूंगा और नजारा बदल दूंगा, क्योंकि पार्षद भी मेरा और आप ही का ये नारा है ना, पार्षद होगा हमारा, विधायक होगा हमारा, तो पता नहीं हम दिल्ली का नजारा क्या कर देंगे, आप ही का है। तो आपको ये बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से। ऐसा तो नहीं है पहले ही दिन बहाना ढूंढ लिया अरविंद केजरीवाल, ओ भगवान आज तो एमसीडी भी जीत गए, अब तो बहानों की लिस्ट खत्म हो गई, अब क्या करूं? चलो पहले ही दिन एक मैं एजेंडा सेट कर देता हूं कि भाई सपोर्ट मिले केंद्र का, साइकोलॉजिकल। अभी तो आप कह रहे थे कि नई पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को धूल चटा दी। अब आप सबसे बड़ी पार्टी को धूल चटा सकते हैं तो एक पहाड़ को तो हटा ही सकते हैं। हाँ बिल्कुल हटाएंगे ना, काम करने दीजिए, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, काम करने दीजिए। अभी नई पार्टी नाउ दे सो नाइव। पद्मजा लुक हाउ नाइव। ओके लेट निगत अब्बास फिनिश अ पॉइंट। हाउ नाइव, अभी तो हम भोले भाले बच्चे हैं। अभी हाउ नाइव आर दे बिहेविंग, अभी तो हम भोले भाले बच्चे हैं, अभी पहली बार आए हैं, अभी तो दूध देखा है, दूध पीना तो सीखना है, परसों उसकी खीर बना देंगे। Blame game excuses have that all of that politics has gone for a toss. Arvind Kejriwal just clearly spoke about the positive politics. Now I'm talking about the working politics. Okay, you need to not politics. talk just positive, you have to execute the plan. You have to come up with a blueprint. The manifestos you have given, you have to fulfill Fair those. enough, ma'am, Only but saying let's be would very not fair help. for that. The That would BJP not in work. Delhi They also are has to giving pull you up its mandate. socks. Respect Has that. to pull up its socks to ensure that the accountability is fixed for everything that the Aam Aadmi clearly, Party we need to introspect fails to where do, we went if wrong. they fail to do. Harshvardhan I ji. am. भारतीय जनता पार्टी को तो बहुत People's ज्यादा अपने mandate आप को is देखने की everything. जरूरत है, People's वो अभी कोई mandate is टिप्पणी everything. करने लायक है With all due नहीं। ये respect, ठीक we है need कि to 104 introspect सीटें where मिल we गई, went wrong. लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड, इतना बड़ा नाम, इतना वोट खींचने वाला नेता होने के बावजूद वो हार रहे हैं तो ये छोटी बात नहीं, सोचना चाहिए इन लोगों को। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो आज कह रहे थे कि सबकी मदद चाहिए, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो एमसीडी के जब तीनों अलग अलग मेयर थे तो वो लोग मिलने गए थे तो उनसे मिलने के लिए अपने घर के दरवाजे से बाहर नहीं आए। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे पूरे परिवार के साथ यमुना में नहलाएंगे, और जब यमुना में नहाने का वक्त आया तो उन्होंने कहा कि देखो भाई 2020 का चुनाव हो गया, अब 25 में बात करना, ऐसा कोई नेता कर नहीं पाता है। दो लाइन में तो इस तरह के नेता के ऊपर अभी भरोसे की स्थिति नहीं है। चुनाव वो जीते हैं, हम उनको शुभकामना देते हैं, उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी चीजें साफ हो। Jay, when you look at the national picture, 2022 and this win, of course, the caveat is that we still have projections when it comes to Himachal and Gujarat. But if the projections are accurate, the Aam Aadmi Party is not making much of a dent in either state. Will the MCD give it enough ground to make a mark nationally, or these are pipe dreams? I believe the fact that MCD has a D, Delhi, and I always keep, telling all my friends that, Delhi somehow always historically had a special place in Indian politics. The kingdom that the Pandavas built, Indraprasth, is East Delhi, right? So, the very fact that it is the MC of D gives it some relevance, gives it some news value, gives it some headline value, some recall value. So certainly they made a small beginning, they made a mark. Tomorrow, depending on the vote share also, they might have some stories to take to town.
So certainly it's maybe time for them to get a greater brand recall. And just remember, we actually took out a sample of 15 seats where the Aam Aadmi Party has very strategically fielded its candidates out of 182 and Gujarat. And so far, the best that the Times Now ETG exit poll has given is that they have a tight fight in 3 or 4 seats, but still nobody has called any particular seat for them. Various opinion polls have given them 3 to 7 seats, but nobody has actually named ki kaun si seetein jeet rahe hain. So there is still not enough presence for people to say ki haan, this seat is in the bag for the Aam Aadmi Party. At the end of the day, always remember, historically, when you walk out on the streets of Delhi, voters will tell you, Delhi mein Kejriwal, center mein Modi. After every thumping win that the Aam Aadmi Party has had in Delhi, the same city has returned a full house for the BJP in the Lok Sabha. We wonder if a municipal corporation election is going to change that. On that note, thank you very much, all gentlemen, Nigat Abbas, for joining me. Tomorrow, of course, is going to be a big day, and we'll have a lot of these questions answered.